Yes, good morning, students. Now let us start with our class. Good morning. And now let us complete the chapter today, students. Students, actually, we had gone through the chapter, we had read also, plus, I had given you many short answer type questions, and you all attempted in a very well way. Even I have checked the notebooks, I have seen the work. Congratulations, some of the students have done their work in a very nice way, in with a good in an interest and done in a legibly way, and still few students are left to submit their notebooks, so I'm waiting for those students to submit. Now students, let us discuss the textual questions. जो स्टूडेंट्स मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए थे, actually they were short answer type questions, and even I had instructed also कि students you will get these question as long question also. अब देखना आप टेक्सचुअल क्वेश्चंस करोगे, और ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस आप करोगे, आप देखना कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आंसर नहीं आता होगा। बस आपने अपने जो वैल्यू पॉइंट्स हैं उन वैल्यू पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। चलिए, ओपन पेज नंबर 6 ऑल ऑफ यू। Look at the first question. The three phases of the author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. Now I want every student to go through this question. अगर आपको कंटेंट आता होगा तो ही आप इस कंटेंट को अटेम्प्ट करोगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। द थ्री फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री। यहाँ पर है बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। वो थ्री फेसेस बताओ। विलेज, विलेज से सिटी जाता है, सिटी से कहाँ जाता है वो, अब्रॉड जाता है। तो ये थ्री फेसेस आपने एक्सप्लेन करना है। Shall I proceed or would you like to participate? हाँ जी बेटा, class, who will answer this question or shall I explain you? हाँ जी students, are you listening me? हेलो बेटा। ओके, so चलो एक क्वेश्चन प्रोसीड करूँ। थ्री फेसेस है। फर्स्ट, it was village. Second, when they moved to city. And the third phase comes when he just about the learning he went to abroad. द फर्स्ट फेज ऑफ द रिलेशनशिप इन द विलेज, यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है आपने सब कुछ एक्सप्लेन करना है। हाउ द ग्रैंड मदर जस्ट टू केयर ऑफ खुशवंत सिंह। तो हाँ, कोई पार्टिसिपेट करेगा? ग्रैंड की जो खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है, प्लीज थोड़ा रिट्रीव कीजिए पॉइंट्स, वैल्यू पॉइंट्स को। क्या क्या करती हैं? व्हाट शी डज फॉर द ऑथर, शी टेक्स केयर ऑफ ऑल द नीड्स ऑफ द ऑथर, ठीक है। और सेकेंड क्या करती हैं? हाँ जी, she wakes him up in the morning, gets him ready for school. Then what she does? She gives breakfast. Then she takes him to school. And where was the school? The school is attached to the temple. और जो grandmother है, actually she sits there at the temple, she read the scriptures. And after that, they both return home. And on her way, what she does? Grandmother क्या करती है जब वापस आती है? हाँ जी बेटा, क्या करती है grandmother when very good. Just what happened? They feed the village dogs. Now this is the first phase. और ये जो question है, this is a long answer type question and you need to explain all the value points. Now come to second. The second phase of the relationship begins when the author joins English school in the city. जो वो city में जाता है. So city में क्या क्या problem face करती है grandmother? जो जो activities she does just at the village time, she stopped doing everything. क्या कर दे? She doesn't go with him to school. Now अब क्या आता है? Motor bus just comes to take him. Then she can't help him in his studies.
because whatever the content, उनका जो भी content था, it was everything in English medium, and she could not able to understand a word. And even she was also very much happy with the sort of with the sort of music and the dance just given to students at that time in the city schools. And the third phase comes when she learns that the author is learning. Just what happened, music वगैरह ले दो. Then he went to abroad for 5 years. Now look at the next question. Mention 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school. ये जो question है, even we have done this question as a short answer question. हाँ जी बेटा, just please raise your hands. यहाँ आपके raise hand का option है ना? So please raise your hands. I'll just call your names and you will tell the answer. Put your hands up. आप ये देखो, आपके यहाँ ऑप्शन होगा रेज हैंड का. हाँ जी स्टूडेंट्स, बस एक्चुअली यू आर रेजिंग योर हैंड स्टूडेंट्स, बट आई एम नॉट गेटिंग यू ऑन द स्क्रीन. स्क्रीन पे नहीं आ रहे बेटा आप. चलो ऐसा नेक्स्ट टाइम से ना. ओके, एक सेकेंड बेटा. किस पे क्लिक करना है? हेलो, पिन पे. चलो ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ. एक्चुअली ऑप्शन नहीं आ रहा है. चलो आप एक्चुअली वन बाय वन बोलिए. मैं थोड़ा सा फिर इसकी सेटिंग को एक्चुअली चेक करती हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 12th में ऑप्शन आता है, बट दिस टाइम आई एम नॉट गेटिंग द ऑप्शन. चलिए स्टूडेंट्स, तनिष्का, विल यू टेल द आंसर बेटा? आर यू लिस्निंग मी? हेलो बेटा. yes, are you getting me students? हेलो. हाँ जी बेटा, चलो बोलिए, पार्टिसिपेट कीजिए बेटा. एनीवन ऑफ यू? हाँ जी बोलो बेटा, टेल मी योर नेम. हाँ चलो विशाल, टेल द आंसर बेटा. ओके ठीक है, इट इज साइज एंड लर्निंग जस्ट. एंड व्हाट हैपन नेक्स्ट पॉइंट? ओके नेक्स्ट वन, allergic to music, या फिर इसमें आप ऐड कर दो. एक्चुअली शी वॉज वेरी अनहैप्पी विद द सॉर्ट म्यूजिक गिवन टू हिम, एंड डांस ऑल्सो शी थॉट दैट it would just associated with the lewd things with the beggars and harlots. और next point बोलो बेटा. anything else? and she could no longer accompany. हाँ ठीक है, गुड विशाल. हाँ स्क्रिप्चर्स नहीं है, गॉड्स नहीं है. सो यू ऑल हैव टू राइट डाउन दीज 3 पॉइंट्स, राइट? अगर बाई चांस मान लो बेटा अगर आपको याद नहीं रहता है, जस्ट आई हैव इंस्ट्रक्टेड यू, जस्ट बी रेडी विद योर बुक एंड अ पेंसिल. यू कैन राइट डाउन इन शॉर्ट में आप वोकैबुलरी वर्ड्स लिख सकते हो कि व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लेन, व्हेन यू ट्राई टू राइट डाउन द आंसर, you will have all the value points in your mind. Now move to next one. Mention 3 ways in which the author's grandmother spent her day after he grew up. After he grew up मतलब city में पूछा है, right? Because when they were in the village, they had a good bond of love, they had good attachment. But when they shifted to city, so what she switched, हम switched on कह सकते हैं. she kept herself busy कह सकते हैं. so वो क्या 3 चीजें क्या क्या करती थी? yes, हाँ जी बेटा, कौन बताएगा? हेलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा. हाँ चलो आप बोलो बेटा. हाँ बोलो. हाँ वेरी गुड. अब लिख लो बेटा, क्या था फर्स्ट एक्टिविटी? वॉट शी डज, शी सेट हर एट द स्पिनिंग व्हील. ओके नेक्स्ट,
most of the time. Next, second point. She recited prayers, she recited scriptures in a monotonous way. Okay. And what is the third one? और फिर इसमें इसी के साथ beads of rosary जोड़ देना, क्योंकि scriptures है, pray recite करना और beads of rosary rotating, ये इसके साथ ही लिखना. और and what is the, हाँ वेरी गुड, हाँ जी, हाफ एन आवर. इसमें कहा गया ना फॉर हाफ एन आवर. जो ग्रैंड मदर है उसके लिए हाफ एन आवर वो था वन ऑफ द हैप्पीएस्ट पीरियड. क्या था? when she just what happened, she fed the sparrows. बस only these 3 points you have to write down. Now come to next one. Mention the odd ways. Odd ways होता है strange, अद्भुत तरीके से, मतलब अलग तरीके. स्ट्रेंज मतलब ऑथर ने कभी उसको इस बिहेवियर को, उसने अपनी ग्रैंड मदर के बिहेवियर को अपनी लाइफ में कभी नोटिस ही नहीं किया था. सो मेंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड. जस्ट बिफोर शी डाइड मीन्स वैन जो ऑथर है, जो ऑथर का बेटा आता है, आने के बाद what how did she behave? चलिए, इज गौरांग देयर इन द क्लास? हाँ जी बेटा, कल से मैं लिस्ट रखूंगी और ये ध्यान रखना सभी स्टूडेंट प्रेजेंट हो. और मतलब इन ए शैफल वे आई कैन जस्ट कॉल आउट एनी वन ऑफ योर नेम्स एंड आई कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन ऑफ यू. चलिए बोलो बेटा. हाँ जी बोलो बेटा. यस, स्पीक अप. हाँ जी, हाँ जी. एंड रोजी बीड्स, और ये भी ऐड कर दोगे? हाँ ठीक है, आगे बोलो बेटा. द रोजरी फेल फ्रॉम हर फिंगर्स, देयर वॉज पीस ऑन हर फेस एंड शी वॉज dead. Okay, chalo. Who answered this question? Could I know your name, please? Hello, Saksham. Chalo, good attempt. Now move to next question, students. Mention the ways. बेटा मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है. अगर बाई चांस अगर नहीं आता तो जस्ट यू इन्फॉर्म मी, है, बोल देना एक बार. Mention the ways in which the sparrows expressed their sorrow when the author's grandmother died. Right. So what happened? आपको याद है when grandmother died? So what happened in the veranda? Thousand of sparrows means many sparrows scattered around the corpse of the grandmother. अब बोलो who will answer? What they did? उन्होंने क्या किया? हाँ जी बोलो बेटा. हाँ हाँ बोलो. हाँ जी आप ही बोलो. गुड. हाँ गुड वोकैब्युलरी वर्ड यूज किया है. हम्म. नो, वेरी गुड. नो चिरपिंग. ओके. Excellent answer. Good beta. You covered all the value points in a systematic way. और आपने जो वर्ड लिमिट्स यूज किए वो भी बिल्कुल ठीक है. हाँ जी बेटा, सबको समझ में आ गया. और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली यू ऑल विल राइट इन अ, हाँ जी ठीक है ना, ये सबको आता है कि स्पैरो जो हैं दे स्कैटर, दे वर साइलेंट थे, नो चिरपिंग थी. इवन व्हाई डिड दे कम देयर? एक्चुअली दे केम देयर टू एक्सप्रेस देयर सोरो, कॉन्डोलेंस करने के लिए, दुख प्रकट करने के लिए आए थे कि जो ह्यूमन बींग हमें मतलब फीड करता है, नाउ शी इज़ नो मोर. और जब ऑथर की ग्रैंड मदर ने जब ये देखा, शी बॉट सम ब्रेड क्रम्स थ्रू टू दैम बट द बर्ड्स दे डिडंट नोटिस इट दैम. एंड इवन द ऑथर एंड द मदर दे फेल्ट सॉरी फॉर द स्पैरोज कि उन्होंने वो ब्रेड क्रम्स नहीं खाए. दे वर ऑल्सो सैड एट द डेथ ऑफ द ग्रैंड मदर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. The author's grandmother was a religious person.
What are the different ways in which we come to know this? ये क्वेश्चन हमने शॉर्ट क्वेश्चन में किया था। जहाँ जहाँ आपको लगता है रिलीजियस पर्सन है, धार्मिक चीज़ें हमें उसके कैरेक्टर से झलक रही हैं, राइट, वो चीज़ें, वो इंस्टांसेस आपने एक्सप्लेन करना है। हाँ जी बेटा, हु विल टेल? आप पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर सकते, आप पॉइंट वाइज बता सकते हो। चलिए, सक्षम ने आंसर कर दिया। आशी, वुड यू लाइक टू ट्राई बेटा? आशी शर्मा, हाँ बोलो, कोई भी वैल्यू पॉइंट बोलो बेटा जहाँ पे आपको लगता है वो रिलीजियस लेडी थी, दैट शी वाज गुड बाय हार्ट। कैसे कह सकते हो दैट शी वाज रिलीजियस? हम्म। हम्म। हाँ, बीड्स ऑफ रोजरी, गुड, आगे। हम्म। हम्म। वेरी गुड। हम्म। 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 ओके, गुड, एक्सीलेंट आंसर। बिल्कुल आशी, और यू हैव आल्सो कवर्ड ऑल द वैल्यू पॉइंट्स। बस एक थोड़ा एक वैल्यू पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, लिटिल बिट, राइट? दैट मींस व्हेन द लास्ट मोमेंट कम्स एट हर बेड टाइम, तो आपको पता है शी डजंट वांट टू वेस्ट हर लास्ट मोमेंट्स, शी कीप्स प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीस टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। बस एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देना, अदरवाइज योर आंसर इज कंप्लीट। नेक्स्ट वन, टॉपिक से बाहर, बाहर या वर्ड लिमिट्स, या वर्ड लिमिट्स? नहीं, यहाँ सुनो, एक रिलीजियस है, रिलीजियस धार्मिक, और यहाँ पर उनका जो नेचर है गुड हार्ट, हार्ट, दैट शी वाज वेरी मच गुड बाय हार्ट। अगर आपकी जो हार्ट की फीलिंग्स गुड है, देन इट ऑल्सो शोज योर रिलीजियस फीलिंग्स, राइट? आप रिलीजियस हो, आप चैंटिंग ऑफ मंत्रास हो गया, बीट्स ऑफ रोजरी हो गया, राइट? तो ये जो रिलीजियस फीलिंग है, इट मेक यू गुड। और क्या गुड फीलिंग दिखा रखा है, दैट शॉर्ट में लिख दिया, इन द विलेज शी फेड द डॉग्स, और सिटी में शी स्विच्ड ऑन टू दैट स्पैरो। दिस शोज द गुडनेस ऑफ दिस कैरेक्टर, इसलिए ये पॉइंट काउंट किया गया है। ठीक है बेटा? अदरवाइज आप इसमें 3 पॉइंट्स लिख दो, बीट्स ऑफ रोजरी हो गया, स्क्रिप्चर्स हो गया, वो तो सारे मेन पॉइंट हैं, लेकिन इसमें जो आप जहाँ पर आप कोई पॉइंट आउट करो, यहाँ पे उस कैरेक्टर का, उस लेडी की गुडनेस झलक रही है। और जो पर्सन रिलीजियस होगा ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं उसके गुड ट्रेड्स आपको नजर आएंगे। ठीक है ना? एक तरह से मान लो, कोई वो बोलते हैं ना कि दैट मीन्स, अरे ही इज वेरी रिलीजियस, रिलीजियस सिर्फ एक मंत्र बोलने से या माला जपने से कोई रिलीजियस नहीं होता, राइट? हम बोलते हैं ना हिंदी में, आप बहुत अच्छा ये इडियम यूज करते हो, दैट मीन्स करते हो ना कि मुंह में राम राम बगल में छुरी। अगर आपके जो गुडनेस ही नहीं है आपके अंदर, तो आप किस चीज के रिलीजियस पर्सन हो? सो हैव यू गॉट माई पॉइंट बेटा? हम्म। तो वो गुडनेस झलकनी भी चाहिए वहां पे उस एक्ट के अंदर, तो इसलिए इस पॉइंट को ऐड किया गया है, पॉइंट को लिया मैंने। अंडरस्टूड बेटा? चले आगे, चलो। हाँ, और ये वर्ड लिमिट्स इसलिए लिखा है बिकॉज दिस इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चलिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रही हूँ बेटा। डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। डिड देयर फीलिंग फॉर ईच अदर चेंज? अब मुझे पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को?
अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि क्वेश्चन में लिखना क्या है? अब देखो, हाँ गुड, सबको समझ में आ गया? एक बार एक्सप्लेन करूँ क्वेश्चन बेटा? ठीक है चलो, हाँ हाँ हर्ष आ गया तो चल तू आंसर कर। हम्म, हाँ जी बेटा, चलो आंसर करो, जितना आता है उतना आंसर कीजिए, फिर आगे हम प्रोसीड कंटिन्यू करेंगे बाकी स्टूडेंट्स के साथ, या मैं कंटिन्यू करूंगी आपके साथ? चलिए। हाँ आप है ना हर्ष, इसको पहले से स्टार्ट करो। चेंजिंग रिलेशन तो सिटी में जाते तब स्टार्ट होता है, सबको पता है, लेकिन आप इसको विलेज से स्टार्ट करते हो। दैट दे हैड अ गुड बॉन्ड, गुड अटैचमेंट, राइट, व्हेन द ऑथर स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द विलेज विद हिज ग्रैंडमदर। ठीक है, फिर आगे आप कंटिन्यू कीजिए कि जहां पर जो ग्रैंडमदर थी। हाँ हाँ बिल्कुल, फिर उसमें ना आपको पूरा जो आंसर लिखोगे ना, तो चेंज इन रिलेशन में पूरा डिफरेंस आ जाएगा। अच्छा हाँ, विलेज में गुड बॉन्ड थी, विलेज में जो उसकी मदर थी उसकी कांस्टेंट कंपेनियन थी, राइट, शी टेक्स केयर ऑफ हिम। तो इस तरह से स्टार्ट कर दो, क्योंकि इसमें पूछा है ना डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप, तो उसमें आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट क्लियर दिख जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने पूरा डिफरेंस एक्सप्लेन किया है। चलो बोलो। हाँ। हम्म। बस दे बोथ वॉक बैक, बस इतना लिख दो इसमें बस। और अब डिफरेंस बता दो, बट देयर रिलेशनशिप चेंजेस सडनली, अचानक, व्हेन द ऑथर जॉइंस एन इंग्लिश स्कूल इन द सिटी, व्हेन दे मूव टू सिटी। अब इसमें डिफरेंस बता दो। हम्म। तो ग्रैंड मदर क्या करती हैं? डजन लाइक द थिंग्स टॉट एट द स्कूल हो गया। फिर क्या करते हैं? शी रियली टॉक्स टू हिम, ये डिफरेंस हो गया। और यहाँ पर था ना, सी एक्सेप्टेड हर seclusion विदाउट रेजिग्नेशन। सुन रहे हो सभी बच्चा? मैं मेन मेन बता रही हूँ, आप वो इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो, वो वाला फ्रेज एक्सप्लेन कर सकते हो। और यहाँ पे बट दिस चेंज इन नो वे, हाँ म्यूजिक वाला भी कर सकते हो। मतलब इट सीम्स शी स्टॉप टॉकिंग टू हिम, ऐसा लग रहा था हाँ जो ग्रैंड मदर है शी वॉज नॉट एट ऑल हैप्पी। हाँ, तो उसकी स्टडीज में हेल्प नहीं करती थी, शी बिकम सैड, राइट, शी डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग विच टॉट एट द इंग्लिश मीडियम। बस हो गया, सभी को क्लियर है बेटा? सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए आपके? फिर कहा डिड देयर फीलिंग्स फॉर ईच अदर चेंज, क्या उनकी आपस में कोई फीलिंग चेंज हुई थी? हाँ, हम ये मानते फिजिकली दे वर नॉट इंटीमेटेड, मीन्स मतलब दे वर नॉट टॉकिंग। आप मतलब जब व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन अ सेपरेट रूम, राइट, तो उनका जो कॉमन लिंक था वो भी ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन क्या उनके मन में, इसका कहने का मतलब है जो प्यार था, जो आपस में जो बॉन्ड थी, क्या वो कम हो गई थी? कम हुई थी? नहीं, कैसे कम हो सकती? अटैचमेंट पूछा है हर्ष इसके अंदर, राइट, रूम अलग था लेकिन मन के जो उसके लिए प्यार तो उतना ही था ना ग्रैंड मदर के लिए, कि उसका प्यार चेंज हुआ था, राइट, वो उससे बात नहीं करती थी। बट स्टिल व्हाट हैपन, जब वो अब्रोड जाता, आपको याद है वो अब्रोड जाके उसको छोड़ के आती हैं, राइट, अगेन शी वॉज, वो क्या नोटिस करता है? दैट शी इज स्टिल बिजी इन प्रेइंग एंड बिजी विद द बीट्स ऑफ हर रोजरी, शी जस्ट किस्ड एट हिज फोरहेड, राइट। एंड इवन जब वो ऑथर उसकी तरफ देखता है तो उसको लगता है ना कि एट हर एज नो वन कैन टेल, इसका मतलब क्या, उसको ये लगता है कि शायद जब मैं वापस आऊंगा ना तो मुझे मेरी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये क्या है? ये इमोशनल सेंटिमेंट्स, इमोशनल फीलिंग्स है दोनों के बीच में। तो ये फीलिंग्स की बात हो रही है बेटा। हाँ जी, बोलो। दिशा है ना, लेट आई है, दिशा ही नहीं है। नहीं, यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रही दिशा, लॉबी में शी इज नॉट हियर बेटा। हैं क्या आयुषी? मैसेज?
आप उन चैट में उसको डालो कि मैंने देखा है बट शी इज़ नॉट देयर इन द लॉबी। आई हैव बीच बीच में जस्ट आई हैव चेक्ड इट आउट कि स्टूडेंट्स तो लॉबी में नहीं है। मुझे लगता है शी केम लेट एंड शी जस्ट थॉट अब उसको डांट लगेगा। Okay students, what happened? But this change in no way lessens their love for each other. Feelings की बात हो रही है यहाँ पे, समझे बेटा? And then when he comes back after 5 years, she takes him in her arms. She keeps singing and beating the drums for hours. तो ये एक उसके लिए लव ही तो था, एक उसके लिए अटैचमेंट ही तो थी, राइट? कि लास्ट मोमेंट तक भी शी वॉज वेटिंग फॉर हर ग्रैंडसन टू रिटर्न बैक। तो मैंने थोड़ा सा आपको थोड़ा एक्सीड में समझा दिया है, थोड़ा उससे रिलेटेड लिमिटेड ही मैटर लिखना है इसमें, ठीक है? हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? क्लास चलें आगे? वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स, चलो, वुड यू एग्री दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज अ पर्सन स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर? अब ये देखो, स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर, आप इसमें कोई भी पॉइंट ऐड कर सकते हो कि कैसे पता चलता है दैट शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग लेडी। जहाँ पर आप इसमें रिलीजियस पॉइंट आउट ऐड कर सकते हो, शी डिडंट शो हर सेंटिमेंट्स, किस तरह से शी एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन, कोई उसने रिग्रेट नहीं किया, राइट? उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की। तो इस तरह से क्या कह सकते हो? शीवन शी स्टेट साइलेंटली, बट उसको ये था हाँ दैट शी इज़ नियर टू हर ग्रैंडसन। तो आप इसमें जो जो पॉइंट्स आपका स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर आ रहा है स्टूडेंट्स, आप इस आंसर के अंदर वो वैल्यू पॉइंट्स ऐड कर देना। हाँ जी, पार्टिसिपेट करोगे? कुछ डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में कि अंडरस्टूड है? हाँ जी बेटू, बोलो बेटा, हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ ठीक है ना। एक और सुनो, नहीं यूनिवर्सिटी वाला पॉइंट कैसे मतलब? हाँ हाँ, वो तो इसमें आएगा ही, इट शोज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, लेकिन आपने सिर्फ यूनिवर्सिटी बोला ना, तो मैंने आपसे पूछा उसके रिलेशन में ये फ्रेज एक्सप्लेन कर देना, ठीक है बेटा? चलिए नेक्स्ट वन। अब कौन सा फोर्थ क्वेश्चन बेटा? स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। हाँ, ये जो स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर है ना बेटा, हाँ मैं वही चीज़ आपको बोलने वाली थी। अगर बाई चांस मान लो इसका स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर आता है तो आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे। अदरवाइज आपने पढ़ा है कोई भी अगर पॉजिटिव पॉइंट हो, कोई भी नेगेटिव पॉइंट किसी भी कैरेक्टर के बारे में लिखा गया हो, तो हमने उस क्वेश्चन के अंदर पूरा कैरेक्टर स्केच लिखना होता है। और करके आप इसमें क्वेश्चन ऐड कर दोगे, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर, ठीक है ना? तो उसमें उसका एक्चुअली यहाँ पे जो भी है सिर्फ एक उसकी जो एक मेंटलिटी को छोड़ के अबाउट द म्यूजिक एंड अबाउट द डांस, उसको छोड़ के यहाँ पे सारे ही उसके गुडनेस, उसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर यहाँ पर शो हो रहे हैं ग्रैंड मदर के, ठीक है ना? तो आप इसमें ऐड कर देना, ठीक है? नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू नोन समवन लाइक द ऑथर्स ग्रैंड मदर? Do you feel the same sense of loss with regard to someone whom you have loved? अब सुनो बेटा, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, एक तरह से वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अपनी जो लाइफ है या ये कह लो अपना आपका जो अटैचमेंट है विद योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, आई होप जस्ट यू मे हैव मेनी ऑफ यू जस्ट रिकॉल द रिलेशन विद योर ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये जनरल क्वेश्चन है, आपको जैसे लगता है या व्हाट यू फील, जस्ट विल एक्सप्लेन दैट कंटेंट इन दिस क्वेश्चन। ओके, ये आपके अपने अकॉर्डिंग आप इसको लिख सकते हो अपने अपने उसमें सेंस में। हाँ जी बेटा, जो आज क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? अब अपने डाउट क्वेरीज पूछ लो बेटा। हाँ जी क्लास, एनी वन ऑफ यू? हाँ बोलो। बेटा 120 टू 150 वर्ड्स होनी चाहिए बेटा, 5 मार्क्स क्वेश्चन आएगा ये।
ठीक है, वर्ड लिमिट्स एक्सप्लेन कर देना। अगर आपका 10-20 वर्ड ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीड ना हो। बस ये ध्यान रखना कि वैल्यू पॉइंट को स्टिक रहना, कि अगर 5 मार्क्स का है तो ट्राई टू राइट डाउन 5 वैल्यू पॉइंट्स। अगर पूरे 4 ही हैं तो 4 एक्सप्लेन कर दो, नो हार्म इन दैट। लेकिन ज़्यादा तो आपने कंटेंट पे ध्यान देना है। अच्छा रिलीजियस है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, तो हर चीज़ को मतलब काउंट होना चाहिए। हाँ जी बेटा, एंड यस, हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो, हाँ जी, हाँ जी बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पर देखो, ये बात फीलिंग्स की हो रही है। अगर हम बात करते हैं ना प्रॉक्सिमिटी, मतलब अगर डिस्टेंस की बात करते, तो हाँ उनमें डिस्टेंस था, समझ गए आप। डिस्टेंस मीन्स, सुनो मैं दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ, दैट दे वर शेयरिंग द सेम रूम, एक साथ रह रहे थे, ठीक है, वो प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे बात बोलिए फीलिंग्स के लिए। चलो मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज यू लव योर ग्रैंड मदर वेरी मच, ठीक है, सेम आपकी ग्रैंड मदर, खुशवंत की ग्रैंड मदर, जैसे यू शिफ्टेड टू सिटी, ये लगा लो सेम इंसिडेंस आपके और आपकी ग्रैंड मदर के साथ हुआ है, ठीक है ना। बट लेकिन आप ये भी समझते हो कि हाँ जो मेरी ग्रैंड मदर, शी इज़ नॉट हैप्पी विद द सॉर्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन क्या आपकी ग्रैंड मदर के अंदर और आपके अंदर, जो उसके अंदर जो चेंजेस आए थे ना, फीलिंग सैड हुई थी, नाराज थी, वो एजुकेशन सिस्टम को, उसकी एजुकेशन को लेके नाराज थी, लेकिन वो उससे नाराज नहीं थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट। तो ये फीलिंग्स है, आपस की फीलिंग्स, मतलब लव, बॉन्ड, अटैचमेंट, क्या उनके अंदर कोई मतभेद था पर्सनली, मतलब वो एक दूसरे से क्या नाराज थे? नहीं, वो चीज़ इसके अंदर एक्सप्लेन करना है कि ग्रैंड मदर ने कुछ नहीं कहा, अपना बीड्स ऑफ रोजरी वगैरह है, मतलब ये मैंने आपको आउटर एक्सप्लेन किया है, तो आप इसमें वो चीज़ एक्सप्लेन करोगे। तो आप इसमें वैल्यू पॉइंट्स लिख देना। But their relationship changes suddenly when they move to मतलब सिटी स्कूल, राइट, ठीक है ना। हाँ, बट दिस चेंज इन नो वे लेसन्स देयर लव फॉर ईच अदर। दोनों पॉइंट समझ में आए आप लोगों को स्टूडेंट्स? हाँ जी बोलो क्लास, दोनों पॉइंट आ गए ना समझ में, कि उनके लिए आपस का जो प्यार था, जो लव था, वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना। इसमें लिखोगे व्हेन दे मूव टू सिटी, देखो ध्यान से सुनो, उनका जो रिलेशनशिप था वो चेंज हुआ सडनली व्हेन द ऑथर जॉइंस द इंग्लिश मीडियम। बट ये जो चेंज है, दिस चेंज इन नो वे लेसन्स देयर लव फॉर ईच अदर। आपस की फीलिंग्स के लिए उनमें कोई भी चेंज नहीं आया, प्यार के लिए कोई चेंज नहीं आया। कैसे चेंज नहीं आया, फिर आगे उसको एक्सप्लेन कर दो कैसे। आप इसमें लिखोगे शी किसेस द ऑथर लविंगली व्हेन ही लीव्स फॉर अब्रॉड, मतलब वो खुश थी कि चलो मेरा पोता आगे जा रहा है, पढ़ रहा है, उन्नति करेगा, तो मतलब ये क्या है, ये लव ही तो है, ये प्यार ही तो है। अगर सपोज मान लो वो उससे नाराज होती, उनके मतलब आपस में जो बॉन्ड है या आपस उनका प्यार कम होता, तो नहीं भी जाती उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने, समझ रहे हो आप। तो ये उसका लव है, उसकी अटैचमेंट है, जो मतलब वो उसके साथ जाती है उसको ड्रॉप करने के लिए। एंड when he comes back after 5 years, she takes him in her arms and she keeps singing and beating the drums for hours। तो ये क्या है, ये उसका लव ही तो है बेटा, ये उसकी अटैचमेंट ही तो है, आपस की बॉन्डिंग ही तो है, जो कि ये टाइम के अकॉर्डिंग कम नहीं थी। हाँ जी बेटा, अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? हाँ जी बोलो क्लास, आई एम आस्किंग यू स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे हैं मेरी क्लास में। चलो ठीक है, किसी को कोई और डाउट है तो पूछो बेटा। हाँ, पहले ये आप कर लो सभी बच्चे, इसके बाद हम कल करेंगे नोटिस राइटिंग, ठीक है। हाँ, कि अगर बाई चांस आपके यूटी होते हैं ना, तो यूटी में सिलेबस जैसे आपका नोट मेकिंग हमने कवर किया है, फर्स्ट चैप्टर हमने कवर किया है, और फिर उसके बाद हमने ये हम अपना नोटिस हो जाएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग नोटिस विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई।
ठीक है। तो आई होप सो मेरे पास सभी का ही वर्क आ जाएगा। मंडे 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 का सेट कर ले हम ये चैप्टर सेंड करने का। हाँ जी क्लास। भेज देना। ठीक है। और ये सुनो फ्रॉम ये स्टूडेंट्स